السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہ ہوگا، مومن نہ ہوگا، جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ تلنگانہ میں منعقد ہونے والے مقامی بلدیاتی انتخابات میں کانگریس قائدین پرجوش حصہ لے۔ حیدرآباد کے گاندھی بھون میں منعقدہ جنا کانگریس ایگزیکٹو اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ کا خطاب۔ شہر کے کوٹ گلی کے ایک مکان میں پیش آئے آتش زدگی کی واردات، متاثرہ خاندان سے MSO کے ذمہ داروں کی ملاقات و امداد۔ KCR نامی 3 حروف کے بغیر آج علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں دیکشا دیوس پروگرام میں BRS کارگزار صدر KTR کا اظہار۔ بعد کے R&B گیسٹ ہاؤس میں ہائی کورٹ جج کا کیا گیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ ضلع جج بھرت لکشمی و کلکٹر TVN کرشنا ریڈی کے علاوہ CP سعید چیتنیا نے پھولوں کا گلدستہ حوالے کر کے کیا استقبال۔ نظام آباد رورل MLA کیمپ دفتر میں کانگریس قائدین کی ہلچل۔ آنے والے مقامی بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کی فتح کی کوشش کرنے رورل MLA کی اپیل۔ الیکشن کمیشن کے رہنمایاں خطوط کے مطابق فرائض انجام دے۔ نظام آباد میں انعقاد عمل میں لائے گئے RO کے ٹریننگ کلاسز سے ضلع کلکٹر TVN کرشنا ریڈی کا خطاب۔ 1 دسمبر کو لکشمی کلیانہ منڈپم میں DC صدر کی حیثیت سے میں حلف لوں گا۔ میڈیا اجلاس سے نو منتخب صدر نگیش ریڈی کا اظہار۔ مقامی بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کی فتح کے لیے متحد ہو کر کوشش کرنے کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ احمد پورہ جماعت اسلامی نظام آباد کی جانب سے 10 روز ہمسایہ مہم کا آج سے آغاز۔ احمد پورہ جماعت اسلامیہ نظام آباد کی جانب سے جاری 10 روز ہمسایہ مہم کے تحت آج بروز جمعہ نماز مغرب کے بعد مسجد مصطفیٰ میں محلے کے پڑوسیوں پر مشتمل ایک خصوصی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا آغاز عبدالکریم صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں امیر مقامی جماعت اسلامی احمد پورہ عبدالرحیم صاحب نے جماعت اسلامیہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے مہم کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مہمان مقرر مولانا مرزا جاوید احمد بیگ عمری صاحب، امام و خطیب مسجد رضا بیگ نے پڑوسی کے حقوق کے عنوان پر تفصیلی خطاب فرمایا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پڑوسیوں کے باہمی تعلقات، حقوق کی ادائیگی اور معاشرتی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ پروگرام میں محلے کے 100 سے زائد پڑوسیوں نے شرکت کی۔ رفاق جماعت اسلامیہ میں انور خان، محمد ضیاء الدین، عبدالملک ذاکر، عبدالمنان، علیم الدین، اقبال احمد، ممتاز، رحمت اللہ بیگ، مجاہد اقبال، وسیم اقبال، عبید حفیظ سمت دیگر مقامی افراد موجود رہے۔ مہم کے تحت آئندہ دنوں میں بھی مختلف آگاہی و سماجی ہم آہنگی کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ الحمدللہ آج مصطفیٰ وارڈ کا مہم ہمسایہ ایک وارڈ میٹنگ کے طور پہ اجتماع منعقد ہوا، جس کی نگرانی محترم مکرم خان صاحب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس اجتماع میں 100 سے زائد افراد نے شرکت کی اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ
के इज्तिमा अख्ताम पज़ीर हुआ। इस इज्तिमा में मोहतरम मुकर्रम मौलाना जावेद अहमद बेगुफरी दामद बरकातुहू ने बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाया। इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि लोग अपने पड़ोसियों के हुकूक़ की कोशिशों में लगे हुए हैं और हमारे अरकान व कारकुनान इनफरादी मुलाक़ातों के साथ साथ इज्तिमाई तौर पर भी इस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम ही अरकान व कारकुनान के हक़ में दुआ हूँ जिन्होंने इस मुहिम को कामयाब करने के लिए अपनी सही जहद की। मैं तमाम के हक़ में दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए और उनकी सेहत की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। डिवीज़न 25 कोट गली में मुस्लिम बेवा ज़ईफ़ खातून का मकान आग की लपेट में मुकम्मल साज व सामान जलकर खाकस्तर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस कायदीन का बरवक्त दौरा, माली इमदाद व मुतालिका हुक्काम से मुमकिना इक़दामात का मुतालबा। शहर के डिवीज़न 25 कोट गली इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मुस्लिम गरीब ज़ईफ़ बेवा खातून का मकान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपेट में आ गया और घर का मुकम्मल साज व सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। इस बात की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने मकाम वाक़या पहुँचकर जले हुए मकान की मुतासरा ज़ईफ़ बेवा खातून सैयदा ज़ाहिदा बेगम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। तफसीलात के मुताबिक सैयदा ज़ाहिदा बेगम के 2 लड़के थे जिनका इंतकाल हो चुका है। मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी पोतरी सैयदा रुखसार उम्र 10 साल के हमरा एक छोटे से किराए के मकान में अपना गुजर बसर कर रही हैं। कल वो अपनी पोतरी के हमरा किसी शादी के तकरीब में जाने के बाद महल्ले के अफराद ने इनके मकान को आग लगने की इत्तला दी। मकान में मौजूद 2,80,000 रुपये नकद रकम, 1 तोला सोना और 5 तोले चांदी के अलावा घर का तमाम साज व सामान यहाँ तक के राशन भी आग की जद में आकर मुकम्मल तबाह हो गया। इंतहाई गमगीन बेवा खातून और इनकी पोतरी की हालत ज़रा और आग की जद में आई। मकान की तबाह हालत का जायज़ा लेने के बाद निज़ामाबाद मजलिस कायदीन वफद की जानिब से माली मदद की गई और महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों ने MRO से बात करते वाक़या का पंचनामा करके ज़िला कलेक्टर को तफसीली रिपोर्ट पेश करने पर जोर दिया गया ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब बेवा खातून को मदद मुमकिन हो सके और इंशाअल्लाह मजलिस की जानिब से ज़िला कलेक्टर से 4 टाउन में मुलाकात करते हुए तफसीली तहरीरी नुमाइंदगी भी की जाएगी। अलावा आज पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों से बात करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े की जामिया तहक़ीक़ात करते हुए FIR दर्ज करने पर जोर दिया। गरीब बेवा खातून सैयदा ज़ाहिदा बेगम ने मजलिस की जानिब से बर वक्त इनके घर पहुंचकर हालात का जायज़ा लेने और माली मदद करने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और निज़ामाबाद मजलिस कायदीन वफद का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी व सीनियर कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली, अरशद पाशा और खलील अहमद, सैयद लतीफ़, अमर फारूक हाजी मौजूद थे। मेरा मकान जल गया रात में अचानक। घर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आँख के कपड़ों के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। सब अनाज वगैरह सब, थोड़े बहुत पैसे थे, पैसे वगैरह सब जल गए, राख खाक बन गए पूरे। मेहरबानी करके ये हमारी पार्टी वाले आए थे, कुछ मदद करे हमारी। मेहरबानी करके आप लोग भी कलेक्टर के साहब की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आप लोग भी कुछ मेहरबानी करे तो मेहरबानी होगी, मदद करे तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। मकान में हूँ मैं, कहीं मकान भी दिला दिए तो मेहरबानी होगी, आपके सहारा हो जाता मेरे को रहने के बाद। मकान नहीं रहने से तो उन घरों में किराए से फिरना पड़ रहा मेरे को। अब यहाँ के लोग कम किराए पे दिए थे मेरे को मकान, मेरी मजबूरी देख के। अल्लाह ताला वो भी मेरे को नहीं सर का ठिकाना कर दिया। बच्ची रहती, 2 लड़के थे गुजर गए, ये बच्ची है, यतीम बच्ची है, पोतरी मेरी
बच्ची की परवरिश मैं करती, मेरे पास ही रहती बच्ची, मैं ही बच्ची दोनों मिलकर जिंदगी गुजार रहे। हाँ, महल्ले वाले सब मदद करते मेरे को, मस्जिद वाले महल्ले वाले मदद कर एम पार्टी की जानिब से आए थे, सदर साहब वगैरह बड़े बड़े लोग आए थे, मदद करे मेरी। और मेहरबानी करके आप भी गवर्नमेंट की जानिब से कलेक्टर साहब से गुजारिश करके मदद कीजिए मेरी। असद साहब का और एम पार्टी वालों का सबका शुक्रिया, और मेरी जानिब से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके तरफ से, आप लोग बहुत मदद करें मेरी। शहर के कोट गली के एक मकान में पेश आया आतिशज़दगी की वारदात, मुतासरा खानदान से MSO के जिम्मेदारों की मुलाकात व इमदाद। गुज़िश्ता रात शहर निज़ामाबाद के कोट गली इलाके के एक मकान में आतिशज़दगी का वाक़या मंजर आम पर आया, जिसमें एक 73 साला बेवा खातून जाहिदा बेगम और 10 साला यतीम लड़की रुखसार नाज किराए से रहा करती थी। ये लोग कल रात दावत में गए हुए थे कि इनको फ़ोन पर इत्तला दी गई कि इनके मकान में आग लग गई। जब तक वो अपने घर वापस आई, आग ने इनके तमाम घर को अपनी लपेट में ले लिया था। जाहिदा बेगम के मुताबिक 2,80,000 रकम, 1 तोला सोना और 5 तोले चांदी के अलावा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और तमाम सामान जल गया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों ने जाए मकाम पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और मुतासरा से मुलाकात करते हुए अफसोस का इजहार किया। MSO मुतासरा ख़ानदान को राशन किट और कपड़े की इमदाद की और लड़की के तालीम अशिया व डॉक्यूमेंट्स बर्बाद होने पर स्कूल इंतज़ामिया से बातचीत करते हुए लड़की का पूरी तरह ताउन फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर MSO के ज़िम्मेदारों ने नौजवान और माली अफराद से इस ख़ानदान की मदद करने की अपील की। इस मौके पर एडवोकेट जीशान रजवी, डॉक्टर साहिर, शेख रहीम, जुबैर लोहिया, आरिफ हुसैन, इमरान जर्नलिस्ट व बिलाल पटेल व दीगर मौजूद थे। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन MSO की इत्तला में ये बात आई थी कि गुज़िश्ता शब शहर के कोट गली में वाक़ एक मकान में चंद वजूहात की बिना पर आग लग गई थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमने मकान मालिकों और किराएदारों से भी मुलाकात की और उनकी इमदाद के लिए आला ओहदेदारों से भी नुमाइंदगी की। उसके अलावा अपने ज़ाती तौर पर MSO की जानिब से उन्हें राशन और बुनियादी सहूलियात दी, और यहाँ पर एक तालिब इल्म है, उनको भी बुक्स बैग्स वगैरह की प्रोवाइड के लिए हमने बातचीत की। इसके अलावा उनके स्कूल को भी ये इत्तला दी कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया है, ताकि स्कूल में भी जो सिलेबस या फिर बुक्स का लॉस हो गया, उसके वास्ते स्कूल इंतज़ामिया उनसे कोऑपरेट करेगी। इंशाल्लाह MSO की जानिब से इस तरह के काम जारी रहेंगे। आवाम से अपील है, खुसूसी नौजवानों से, कि वो इस तरह के कार्य खैर में MSO से जुड़े। इसी तरह MSO की जानिब से हम अपील करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ से जुड़े, यहाँ पर आए और ज़ाती तौर पर खुद इनकी मदद के लिए जो ज़रूरत है वो फराहम करें। जिला कांग्रेस के नवमुंतखब सदर नागेश रेड्डी को सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम की जानिब से मुबारकबाद और तहनीत। कांग्रेस के सीनियर कायद जावेद अकरम ने जिला कांग्रेस की सदर की हैसियत से मुंतखब होने वाले नागेश रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नागेश रेड्डी की सदारत में कांग्रेस जिला भर में पहले से भी ज्यादा मजबूत होने का इजहार किया। इस मौके पर नोडा चेयरमैन केशव वीनू व दीगर मौजूद थे। तुलबा तालीम के साथ साथ समाजी तब्दीली के लिए कोशिश करने की CPI-ML मास लाइन कायदीन ने की अपील। शहर कामारेड्डी में मुनाकिदा PDSU की 23वीं जिला महासभा प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कहा कि तुलबा माशरा का अहम हिस्सा है। तुलबा के वालिदैन कई मसाइल का सामना कर रहे हैं, लिहाजा बशऊर तुलबा किसानों को, मजदूरों के अलावा आवाम को मुतहरिक करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर कंपनियां आवाम को हर तरह से इस्तेहसाल करते हुए धोखा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PDSU जिला सदर M नरेंद्र, PDSU रियासती जनरल सेक्रेटरी S अनिल, CPI-ML मास लाइन रियासती कायदीन P रामा कृष्णा के अलावा दीगर ने शिरकत की। బలాన్ని ఇప్పటికే 25,000 సభ్యత్వం ఉన్న మన కమిటీ 50,000 సభ్యత్వం చేరుకునే విధంగా అన్ని హాస్టల్లోనూ అన్ని కాలేజీల్లోనూ మన నిర్మాణాలని బలోపేతం చేసుకునే విధంగా అభివృద్ధి కావాలని మరోసారి నేను ఆకాంక్షిస్తూ విద్యార్థులారా
వేదికపై ఉన్న నాకంటే సీనియర్ तेलंगाना में मुनाकिद होने वाली मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस कायदीन कसीर तादाद में मुकाबला करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यूथ कायदीन ग्राउंड में सख्त मेहनत करने से ही शनाख्त हासिल होगी और देहातों में काम करने की वजह से ही आवाम के ख्यालात से आगाही हासिल की जा सकती है। इसलिए सरपंच इंतखाबात के अलावा इसके बाद आने वाले एमपीपी जेडपीटीसी इंतखाबात में भी यूथ कांग्रेस कायदीन मुकाबला करना निहायत ज़रूरी है, जो कि आज गांधी भवन में रियासती युवा जना कांग्रेस सदर शिवाचरण रेड्डी के सदारत में युवा जना कांग्रेस एग्जीक्यूटिव इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में काम करने वालों को ही पार्टी में बेहतर मुस्तकबिल होने का इजहार किया। केसीआर नामी 3 हरूफ के बगैर आज अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं, बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का इजहार। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिदा दीक्षा देवी तकारीब में एमएलए टी श्रीनिवास यादव पार्टी कायदीन के साथ शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने पहले मरहले के तौर पर तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर और जयशंकर सर के मुजस्समे को फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की गई। बाद केटीआर ने कहा कि आज पीसीसी कांग्रेस सदर तहरीक के दौरान कहाँ थे, किसी को भी इनके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आज तेलंगाना की तहरीक के बारे में और केसीआर की दीक्षा के बारे में नामुनासिब तबसरा करने पर तनकीद की। ఎవరు శ్రీరాముడు, విలన్ ఎవరు రావణుడు। రామాయణం త్రేతాయుగం నాటి ఇతిహాసం, ఎన్నో యుగాలు మారినాయి, అయినా నేటి పిల్లలకు కూడా సీతమ్మ తల్లి అపహరణం తెలుసు, రామరావణ యుద్ధం కూడా పూర్తిగా తెలుసు। మహాభారతం గురించి కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ప్రస్తావించినారు। మహాభారతంలో హీరోలు ఎవరు? పాండవులు। మహాభారతంలో విలన్లు ఎవరు? కౌరవులు। మరి మహాభారతం ద్వాపర యుగం నాటి కథ, 1000 ఏండ్లు గడిచిపోయినాయి అప్పటికి ఇప్పటికీ, అయినా అరణ్యవాసం, కురుక్షేత్రం, పద్మవ్యూహం ఇవన్నీ కూడా నేటి యువతకు తెలుసు। रियासती हाई कोर्ट जज जस्टिस टी माधवी देवी जिला निजामाबाद में आमद के मौके पर जिला के आला ओहदेदारों ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर के R&B गेस्ट हाउस में रियासती हाई कोर्ट जज से वजीला जज GVN भरत लक्ष्मी, कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर पी सई चैतन्य के अलावा मुख्तलिफ महकमे जांच से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, एडवोकेट और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का पौधा हवाले करते हुए इस्तकबाल किया। बाद जिला जज, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से हाई कोर्ट जज ने R&B गेस्ट हाउस में कुछ वक्त तक मुलाकात की। इससे पहले हाई कोर्ट जज ने पुलिस की जानिब से दी गई सलामती को कबूल किया। जिला निजामाबाद के मराकिज पर शोहदा के मुजस्समे पर जिला बीआरएस सदर साबिका एमएलए जीवन रेड्डी ने पेश की गुले अकीदत। आज दीक्षा दिवस के मौके पर जिला निजामाबाद के मराकिज पर शोहदा के मुजस्समे पर बीआरएस पार्टी जिला निजामाबाद सदर आरमूर के साबिका एमएलए जीवन रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर खिराज अकीदत पेश की। बाद बीआरएस पार्टी जिला दफ्तर में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाने के साथ साथ केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद मुनाकिदा खून का अतिया कैंप में शिरकत की। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी, साबिका एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता, साबिका एमएलसी वीजी गौड़, साबिका जेडपी चेयरमैन विठल राव, आयशा फातिमा, साबिका मेयर नीतू किरण के अलावा दीगर ने शिरकत की। చివరికి నిరాదీక్షతోటి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం సాధించుకున్నాం। దాంట్లో ఎందరో విద్యార్థులు, యువకులు అమరులైన తెలంగాణ కోసం ఎందుకైనా ఈ పేపర్ చూపించింది ఎప్పటిది? 2009వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 2009వ సంవత్సరం డిసెంబర్లో తెలంగాణ ఇస్తున్నామని ప్రకటించారు। కానీ ఎప్పుడు వచ్చింది మన తెలంగాణ? 2014వ సంవత్సరంలో ఇచ్చింది।
रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस माधवी देवी से पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्य ने की मुलाकात। शहर निजामाबाद के R&B गेस्ट हाउस में रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस टी माधव देवी से निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्य ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का पौधा हवाले किया। निजामाबाद रूरल कैंप दफ्तर में कांग्रेस कायदीन की हलचल। निजामाबाद रूरल कैंप दफ्तर में कांग्रेस कायदीन की हलचल नजर आई। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से धरपल्ली इंदलवई निजामाबाद मंडल इससे ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनकी तरफ से कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक हर एक पार्टी कारकुन व कायदीन खुसूसी दिलचस्पी के तहत आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के रहनुमाया खुतूत के मुताबिक फराइज अंजाम देने का जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़े राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आरोस पंचायत इंतखाबात के इनकाद में अमल में लाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से आगाही फराहम करने के लिए ट्रेनिंग क्लास का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि कानून से मुल्क़ा इंतखाबी फ़राइज़ को निहायती एहतियात के साथ अंजाम देते हुए क़वाइद व ज़ाब्ता के बारे में मुकम्मल पर आगाह होने पर ही किसी भी किस्म की गलती के बगैर फ़राइज़ को ये हुस्न खूबी अंजाम दिया जा सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेनिंग क्लास में दी गई तजावीज़ पर अमल आवारी करें और इलेक्शन कमीशन के तहत हवाले किए गए हैंडबुक का मुताला करके ईसी के रहनुमाया खतूत के मुताबिक शफाफ तरीके से इंतखाबात को मुनक़िद करने के लिए कोशिश करें और इस दौरान होने वाली किसी भी किस्म के शक शुबहात हो तो ज़िम्मेदार ओहदेदारों से आगाही हासिल करते हुए इसकी तस्दीक कर लें और ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच वार्ड नशिस्तों के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवार खुसूसी तौर पर नया बैंक अकाउंट खोलना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। जिला के मराकज़ पर वाक़े कल्याण लक्ष्मी मंडपम में 1 दिसंबर को जिला निजामाबाद डीसीसी सदर की हलफ बर्दारी तकारीब का इनकाद अमल में लाने का नव मुंतखब डीसीसी प्रेसिडेंट नागेश रेड्डी ने किया इजहार। शहर के गंगस्तान में वाक़े क़ियामगाह में मीडिया के नुमाइंदों से इजलास का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इनके हलफ बर्दारी तकरीब में कायदीन और कारकुनान कसी तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि इन पर एतमाद करते हुए डीसीसी सदर के तौर पर नामजद करने वाले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अनक़रीब मुनाक़िद होने वाले सरपंच के इंतखाबात में पार्टी के हामियों को कसी तादाद में फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन कायदीन सरपंच इंतखाबात में रुकावट डालने के लिए की जा रही कोशिश को कोर्ट ने मुस्तरद किया। इन्होंने कहा कि लोकल बॉडी इंतखाबात में और ज़िले में होने वाले तमाम एमपीटीसी और जेडपीटीसी नशिस्तों पर कब्जा करने का इजहार किया और इसके अलावा ज़िला परिषद पर भी कांग्रेस का झंडा लहराने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। इन्होंने कहा कि ज़िले में मौजूद तमाम म्यूनसिपलिटियों में कसी तादाद में कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स को फतेह दिलाने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। नूतन विधानंतो जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद అయితేనేంది नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद అయితేనేంది కార్యకర్తల అభిప్రాయం మేరకు వారి యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకొని సుమారు వారం రోజుల పాటు అబ్జర్వర్స్ వచ్చి సీక్రెట్ తీసుకున్నారు। ఎవరి పేరైతే వస్తుందో ఎవరైతే లైక్ చేస్తున్నారో కార్యకర్తలు కానీ మండల ప్రెసిడెంట్లు కానీ బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలు కానీ అందరి అభిప్రాయం మేరకు మరి నాకు అవకాశం కల్పించిన केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए कई तहरीकें चलाई। बीआरएस कायद साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का इजहार। बांसवाड़ा अंबेडकर चौरास्ते के पास दीक्षा देवी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कोया गुट्टा के पास शोधा के मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए कई तहरीकें चलाई और केसीआर की दीक्षा की वजह से ही मरकज़ी हुकूमत ने पहल की जिससे अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में केसीआर की जानिब से मलबूसात के अलावा
साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई, लेकिन वोट हासिल नहीं किए। लेकिन अब कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी खवातीन को साड़ियों की तकसीम अमल में लाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम में जिला किसान समन्वय समिति सदर डी अंजी रेड्डी, साबिका म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख जुबैर के अलावा दीगर ने शिरकत की। బట్టలు ఇచ్చిండు ఆయన, పిల్లలకి ఇచ్చిన బట్టలు ఆయన, పక్క చెల్లెకి చీరలు ఇచ్చిండు ఆయన, అడిగేది ఎప్పుడన్నా ఓట్లు ఓట్లు ఇచ్చిండు ఆయన, ఏ సమయంలో అసలు ఇచ్చాడు. సిగ్గు కదా కొంచెం కదా, సిగ్గు శరంగా ఉండాలా. ఇచ్చే పొడి రెండు చీరలు ఇచ్చి చీరలు వచ్చి వాళ్ళు ఓటేయాలి. ఈ పరిస్థితి మనకు దాపురించింది. దానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేస్తుంది శిక్ష మనకి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 ఏళ్ళు అవుతుంది. దాదాపు 2 ఏళ్ల కాలంలో చేసిన అప్పు 2,50,000 కోట్లు. మనం 10 ఏళ్ళు చేసిన అప్పు 3,70,000 కోట్లు. निजामाबाद जरी मार्केट में NSS यूनिट के जेर एहतमाम स्वच्छ भारत का किया गया शानदार पैमाने पर इनकाद। आज नेशनल सर्विस स्कीम NSS यूनिट 1 के जेर एहतमाम शुरू की गए स्वच्छ भारत प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत तेलंगाना जरी मार्केट कमेटी चेयरमैन फोरम सदर निजामाबाद AMC चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले SSR कॉलेज और ग्रेज कॉलेज तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की गई। इन्होंने नौजवानों को हर एक वार्ड में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाने की ख्वाहिश की। मानिक भंडार में इंदिरा इल्लू मंजूरी दस्तावेजात मुस्तकीन को कांग्रेस कायदीन ने किया हवाले। मानिक भंडार देहात में रियासत तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की जानिब से बरवकार तरीके से शुरू किए गए इंदिरा इल्लू कांग्रेस पार्टी आर्मूर इंचार्ज विनय रेड्डी के अहकामात के मुताबिक जिला निजामाबाद साबिका DCC जनरल सेक्रेटरी जी पुरुषोत्तम के जेर एहतमाम और कांग्रेस पार्टी मानिक भंडार दही सदर TN रेड्डी की सदारत में प्रेसिडेंट ने इंदिरा इल्लू दस्तावेजात मुस्तकीन को हवाले किया। इस प्रोग्राम में कायदीन जी शंकर के राजेश्वर ई लिच्ची रेड्डी जी स्वामी के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायत नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होने के सबब तेजी के साथ नॉमिनेशन किए गए दाखिल। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के मुकाबले में नॉमिनेशन की वसूली के लिए बरोज़ हफ्ता दोपहर 5 बजे तक मुद्दत खत्म हुई। जिले में पहले मरहले के तहत बोधन डिवीज़न में वाक़ 184 ग्राम पंचायत और 1642 वार्ड नशिस्तों के मुकाबला होगा। इससे मुतालिक 2 दिनों में सरपंच नशिस्तों के लिए 304 और वार्डों के नशिस्तों के लिए 382 नॉमिनेशन मौसूल हुए हैं। नॉमिनेशन की वसूल अख्तिताम पजीर होने के बायस भारी तादाद में दरख्वास्तें आने का इम्कान है। अख्तिताम से कबल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में मुनाकिद होने वाले मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस कायदीन पुरजोश हिस्सा ले। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनाकिदा जना कांग्रेस एग्जीक्यूटिव इजलास में शिरकत करते हुए TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड का खिताब। शहर के कोट गली के एक मकान में पेश आए आतिशज़दगी की वारदात। मुतासरा खानदान से MSO के जिम्मेदारों की मुलाकात व इमदाद। KCR नामी 3 हरूफ के बगैर आज अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस प्रोग्राम में BRS कारगुजार सदर KTR का इजहार। बाद के R&B गेस्ट हाउस में हाई कोर्ट जज का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। जिला जज भरत लक्ष्मी व कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी के अलावा CP सईद चैतन्य ने फूलों का गुलदस्ता हवाले करके किया इस्तकबाल। निजामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में कांग्रेस कायदीन की हलचल। आने वाले मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह की कोशिश करने रूरल MLA की अपील। इलेक्शन कमीशन के रहनुमाया खतूत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दे। निजामाबाद में इनकाद अमल में लाए गए RO ARO के ट्रेनिंग क्लासेस से जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी का खिताब। 1 दिसंबर को लक्ष्मी कल्याण मंडपम में DC सदर की हैसियत से मैं हलफ लूंगा।
मीडिया इजलास से नव मुंतखब सदर नगेश रेड्डी का इजहार, मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह के लिए मुत्तहिद होकर कोशिश करने की अपील। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।